Namaste. Today we are going to discuss about geometric meaning of the zero of a polynomial. So before going to geometric meaning of the zero of a polynomial, we should discuss about some basic terms, facts, concepts, meaning and definitions. Let's start. Degree of a polynomial. The degree of a polynomial px in x is the highest power of x in px. Example 2x plus 3. Here the highest power of the variable is 1, so its degree is 1. Similarly, in x square minus 5x plus 6, so highest power of the variable is 2, that is why its degree is 2. Similarly, in x to the power 5 minus a to the power 5 equals to 0, where a is any constant number and x is variable, and its degree is 5 since its highest power is 5. Not a polynomial. The expressions like 1 upon x plus 1, square root of x minus 1, 1 upon x to the power 2 minus 3x plus 2. These are not polynomials since its degree is either minus 1, that is negative numbers, or the fractional value. And we know that if the degree is negative numbers or fractional value, then it is not a polynomial. That is why these numbers are not a polynomial. Linear polynomial. A polynomial of the form ax plus b where a not equals to 0 is called linear polynomial and its degree is 1. Quadratic polynomial. A polynomial of the form ax square plus bx plus c where a not equal to 0 is called quadratic polynomial and its degree is 2. Cubic polynomial. A polynomial of the form ax cube plus bx square plus cx plus d where a not equals to 0 is called cubic polynomial and its degree is 3. Biquadratic polynomial. A polynomial of the form ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a not equals to 0 is called biquadratic polynomial and its degree is 4. Value of a polynomial. The value of a polynomial px at x equals to k, where k is a real number, is denoted by pk and is obtained by putting k for x in the polynomial px. Example, let px equals to x to the power 2 minus 5x plus 6. If x is equal to k, then pk equals to k square minus 5k plus 6. And if we put x equals to 1, so p1 equals to 1 square minus 5 into 1 plus 6. It gives p1 equals to 2. So the value of the polynomial x square minus 5x plus 6 at x equals to 1 is 2. Zero of a polynomial. A real number k is said to be zero of a polynomial px if pk equals to 0. It means for any real number k, if the polynomial becomes 0, it means k is the zero of a polynomial. Zero of a linear polynomial ax plus b where a not equals to 0 is minus b upon a. Let's check. Ax plus b equals to 0 implies that ax equals to minus b, that is x equals to minus b upon a. So we can write 0 of a linear polynomial equals to minus of constant term upon coefficient of x. Now geometric meaning of the zeros of a polynomial. So first meaning and definitions. Let px be any polynomial, then the number of those points in which the graph of y equals to px intersects the x-axis is called number of zeros of the polynomial and the x-coordinate of these points are called zeros of the polynomial px. आसान भाषा में इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे या इंटरसेक्ट करे उतना ही इसका जीरोज होगा और जितना इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका जीरो होगा. इट हैज सम केसेस. फर्स्ट केस, इफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कैन बी n. मतलब अगर किसी पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री n है तो टोटल पॉसिबल जीरोज उसके n हो सकते हैं. Second case, if the graph of y equals to px does not at all intersects the x-axis, then the polynomial px will have no zeros. मतलब अगर ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके जीरोज नहीं होंगे. Third case, to determine the zeros of a polynomial px, we equate px to 0 and solve the equation px equals to 0 obtained in this way for x. The values of the x obtained will be the zeros of the polynomial px. मतलब किसी भी पोलिनोमियल का अगर हमको जीरोज कैलकुलेट करना है तो उसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा और उस कंडीशन में जो भी x का वैल्यू आएगा वही हमारा जीरोज होगा.
Example, let px equals to x square minus 9x plus 18 and we have to determine the zeros of a polynomial, so we should equate px to 0, that is x square minus 9x plus 18 equals to 0, and after factorization we get x equals to 3 and 6. Therefore 3 and 6 are the zeros of the given polynomial px. Second point, let ax square plus bx plus c, where a not equals to 0, be a quadratic polynomial. Then the shape of the graph of the corresponding equation y equals to ax square plus bx plus c is either open upward like alphabet u or open downward like alphabet u downwards, according as a greater than 0 or a less than 0, and these curves are called parabolas. Third point, a constant polynomial has no zero. It means a constant polynomial px has not zeros at all. Graphical representation for the zeros of a polynomial. Let px equals to y equals to 2x plus 3. अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x और y दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज लेने होंगे. सो x के स्थान पर अगर हम -2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -1 आता है. x के स्थान पर अगर 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 7 आता है. इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस तरीके से दिखेगा. आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ग्राफ. ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ बना. ग्राफ में आप स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का. अब क्लियरली यहाँ पर विजिबल है कि x एक्सिस को ये लाइन एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ही इसका जीरो होगा. और वो जीरो क्या होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही इसका जीरो होगा. यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -3/2, 0 है. तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2. सो -3/2 इसका एक जीरो है. नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं. लेट px इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x -4. इस पोलिनोमियल को भी ग्राफ में प्लॉट करना है. तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x और y का डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास होने चाहिए. यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब हम x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 6 आता है. जब हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है. जब हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -4 आता है. ऐसा ही करके डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट किया x के स्थान पर और ये हमें y का रिजल्ट दिया, डिफरेंट रिजल्ट आया. ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं तो ये इस टाइप का एक ग्राफ बनाया जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. एक कर्व बनाया जो कि पैराबोलिक कर्व है और क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि ये पैराबोलिक कर्व x एक्सिस को दो स्थान पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों ही स्थान के इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका 0 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके दो जीरोज होने चाहिए और दोनों ही जीरोज का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका 0 होगा. अब जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग चेक करते हैं कि उसका क्या सब नेचर हो सकता है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का. इसका डिफरेंट केसेस हैं. तो केस 1 को सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे. लेट px इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसको चेक करते हैं. केस 1 के लिए एक ग्राफ अभी आपके सामने में दिख रहा है स्क्रीन पर. एक पैराबोलिक कर्व बना रहा है जो कि x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. a एंड a डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका दो जीरोज होने चाहिए. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंटरसेक्ट किया है. अब दूसरा ग्राफ देखिए जहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, यही पैराबोलिक कर्व a और a डैश पॉइंट पर. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कर्व x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करे या कट करे या मीट करे उतना ही इसका जीरोज होना चाहिए. तो यहाँ पर पैराबोलिक कर्व दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर दो जीरोज इसके दिख रहे हैं और दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका 0 होगा. केस 2 सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब आप ग्राफ में क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक पैराबोलिक कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है और दूसरे ग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि एक और पैराबोलिक कर्व है जो कि x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है. अब यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. जनरली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दो डिफरेंट जीरोज होने चाहिए, लेकिन ये दोनों जीरोज आपस में कोइंसाइड होकर के वन सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है या मीट किया है. तो इस कंडीशन में इसका एक ही जीरो है क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है x एक्सिस को और मीटिंग पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका 0 होगा. केस 3 सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब यहाँ पर देखिए ग्राफ में एक पैराबोलिक कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में तो है लेकिन x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट या टच नहीं किया.
दूसरे ग्राफ में भी देखिए फिर से एक पैराबोलिक कर्व तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये भी एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। इस केस में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है या मीट नहीं कर रहा है तो इसके कोई जीरो नहीं होंगे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कर्व बना हुआ है यहाँ पर, इसका कोई जीरो यहाँ पर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग 3 डिफरेंट केस देखे। फर्स्ट केस में देखे थे कि एक पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। सेकेंड केस में देखे थे कि पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच किया। और थर्ड केस में देखे कि पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को कहीं भी टच किया ही नहीं। ये या तो अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कंप्लीटली एक्स एक्सिस से या तो बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे। एक्स एक्सिस को ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर इसका कोई जीरो नहीं होगा। अब कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास x और y का डिफरेंट वैल्यूज होने चाहिए। डिफरेंट वैल्यूज हमने ले लिया, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 3, और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं। इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का दिख रहा है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। 3 डिफरेंट पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका 3 डिफरेंट जीरोज होने चाहिए। और कौन सा होगा इसका जीरोज? तो तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका जीरो होगा। मतलब 3 जीरो और तीनों जीरो का एक्स कोऑर्डिनेट ही इसका जीरो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इस केस में यहाँ पर 3 डिफरेंट जीरोज हो रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको भी जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपको किस टाइप का दिख रहा है जो आपके स्क्रीन पर है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन। और हम जान रहे हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक ही जीरो होगा, और वो जीरो कौन सा होगा? ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही इसका एक जीरो होगा। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर टच कर रहा है। एक बार टच कर रहा है और दूसरी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। टच किया है ओरिजिन पर और इंटरसेक्ट किया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट पॉइंट 1, जो कि क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेकंड ग्राफ में 2 रेड सर्कल से हमने इंडिकेट कर दिया है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 डिफरेंट जीरोज होने चाहिए। और जीरोज कौन कौन से होंगे? सो दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका जीरो होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको हम सॉल्व भी कर दिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है तो एक्स का वैल्यू भी 0 हो रहा है। जब एक्स माइनस 1 0 हो रहा है तो एक्स का वैल्यू 1 हो रहा है। इसका मतलब 0 और 1 ही इसका 2 जीरो होगा। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है अपने पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखते हैं हम लोग अभी तक क्या सब सीखे। समरी में आते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 and 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रेस्पेक्टिवली। A quadratic polynomial in x with real coefficient is of the form ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers with a not equals to 0. A cubic polynomial in x with real coefficient is of the form ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are real numbers with a not equals to 0. The zeros of a polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph of y equals to px intersects the x-axis. A quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros. पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में देखिए, दोनों ही पॉइंट में a नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मेंशन किया और a को यदि हम 0 कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक न होकर के ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर a को 0 के बराबर नहीं रखा गया है। सिमिलरली पॉइंट 3 में भी a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है और a को अगर हम 0 रख देते हैं तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर a को 0 के बराबर नहीं रखा गया है। अब हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। The graph of y equals to px are given below for some polynomial px
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। अब जितने भी ग्राफ यहाँ पर दिया गया है उसमें से चेक करके बताना है कि इसके टोटल जीरोज कितने हो सकते हैं, टोटल कितना पॉसिबल जीरोज है, ग्राफ चेक करके आपको बताना है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।